Hello, imbibers. A very good evening to all of you children. Welcome to today's session. So, what we're going to discuss today, we're going to basically discuss about the very interesting topic. We're going to discuss about the earthquake. As you know, it's a natural disaster in detail. Yes, it's just an informative session. It's not something which is related to your syllabus. It's just a good information which you definitely wanted to have. I wanted to give it to you basically. So before we start, let me introduce you to myself once again. I am Anam Khan. I'll be your biology expert, and in future, of course, in the coming days, we're going to have an amazing sessions of biology. Yes, we're going to basically cover all of your syllabus, everything related to syllabus in detail on the Imbibe app as well as on the YouTube. You will get to know. Yes, you'll have your session schedule. You will get to know on the Imbibe app. There will be sessions you can register for them, and you can join us on the YouTube as well. So yes, children, today it's just an amazing, interesting session of biology where we're going to discuss what is an earthquake and why it is impacting us. How is this earthquake and us are basically totally related? Why even the man-made activities, of course, man's activities also hampering and causing this natural disaster to take place, and how this natural disaster, तुम लोगों को पता है कि earthquake जब कहीं पर भी आता है तो वहां पे कई सारे लोगों को डेथ कॉज करता है. ऑफ कोर्स इट बेसिकली कॉज लाइफ ऑफ लॉट ऑफ पीपल एंड इट आल्सो कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग. सो यस, हमें बस आज ये डिस्कस करना है. तो एग्जैक्टली ये अर्थक्वेक कॉज क्या है, क्या रीजन है कि ये अर्थक्वेक आता है, व्हाट इज द रीजन व्हाई द अर्थ शेक्स, why there is so much of shaking that basically the building collapse, the people die, everything happens. So we're going to just discuss, we're going to give you that information in today's session. Yes, so moving forward children, discussing about the earthquake and us. Next what we have, okay, a quick introduction about myself which I have already given you, but I'm going to give it again children. I'm Anam Khan, your biology expert. I have an experience of 7+ years. I've mentored more than 12,000 students, and I'm a qualification is MSc Plant Sciences, dealing with the plant biology. Yes, dealing with the plant sciences. So this is all about me. A quick introduction about myself which I used to give you on a daily basis already. Okay, moving forward, next we have talking about दी अर्थक्वेक. तो भाई ये अर्थक्वेक है क्या मैम, व्हाट इज एन अर्थक्वेक एग्जैक्टली? अगर मैं बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में पुट अप करना चाहूँ व्हाट इज एन अर्थक्वेक, सो चिल्ड्रन आई एम गोइंग टू बेसिकली से एन अर्थक्वेक इज अ पावरफुल शेकिंग ऑफ earth surface. The tremors are triggered by the movement of earth's outermost layer. Simple words में if I'm going to talk about that, तुम लोगों को पता है भूकंप अर्थक्वेक जब आता है तो पूरी की पूरी धरती जो है हिल जाती है. ठीक है, इट्स बेसिकली कॉजिंग द शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस. जो पूरा का पूरा अर्थ का सरफेस है वो शेक करने लगता है. ठीक है, और ये शेकिंग जो है बेसिकली ये किसकी वजह से ट्रिगर होती है? ये शेकिंग जो है, ये भूकंप जो है, ये शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस जो है, ये किसकी वजह से ट्रिगर होता है? ये इसकी वजह से ट्रिगर होता है जो कि है अर्थ की outermost layer. Okay, as you can see in the 3D picture also, it is basically completely showing you that we have, as you know, तुम लोगों ने बहुत 6th 7th में भी पढ़ा होगा कि भाई अर्थ की लेयर्स हैं. देर आर वेरी मच लेयर्स. हम एक सरफेस पे रहते हैं विच इज इनहेबिटेबल, जहां हम आराम से रह सकते हैं, बट डीप डाउन इन द अर्थ देर इज अ डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट लेयर्स हैं अर्थ की. तो जो आउटर मोस्ट लेयर है बेसिकली, जो ट्रेमर्स हैं, जो ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से वो शेक होती है, वो किस वजह से होती है? क्योंकि जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की वो ट्रिगर्ड होती है, वो उसमें क्या होती है? शेकिंग होती है. दैट बेसिकली कॉजेज द ट्रेमर्स. सो दैट इज व्हाट इज द अर्थक्वेक. दैट इज द रीजन व्हाई द अर्थक्वेक इज बेसिकली हैपनिंग. क्या है ये भूकंप? शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस. एंड व्हाई इट इज बेसिकली इट इज इंपैक्टिंग. ये क्या इंपैक्ट करता है? ये बेसिकली ट्रिगर करता है मूवमेंट करता है अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर को ट्रिगर करता है. दैट्स व्हाई द शेकिंग हैपेंस. और ये इतनी ज्यादा कभी कभी हो जाती है, तुम लोगों को पता है. द शेकिंग इज बेसिकली so much that sometimes we suffer a lot because of it, or we lose lots of life, we lose a lot of infrastructure because of that. Yes, okay, different magnitude में basically इसे measure करते हैं. Okay, as I move forward talking about the earthquake children, just a second. As I talk about the earthquake, next we have
चलो बात करते हैं लेयर्स ऑफ अर्थ की। मैम बोल रही हैं कि जो लेयर्स ऑफ अर्थ हैं वो बेसिकली इम्पैक्ट होती हैं इससे। तो अगर हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ अर्थ की, तो लेयर्स ऑफ अर्थ में है एक सॉलिड क्रस्ट, ठीक है, देयर इज अ सॉलिड क्रस्ट, अ हॉट नियरली सॉलिड मैंटल, ठीक है, अ लिक्विड कोर आउटर कोर, अ सॉलिड इनर कोर। देख रहे हो तुम लोग क्या क्या है एग्जैक्टली। अ सॉलिड क्रस्ट इज देयर, अ हॉट एंड नियरली सॉलिड मैंटल इज देयर, ठीक है, और एक लिक्विड आउटर कोर है और एक सॉलिड इनर कोर है। लिक्विड और सॉलिड समझ रहे हो, लावा समझते हो ना, बहुत हॉट लावा, दिस इज बेसिकली प्रेजेंट इन दीज अर्थ कोर। दैट लिक्विड इज नथिंग विच इज लाइक कूलेंट, इट्स एन एब्सोल्युटली हॉट लावा इन दी आउटर कोर। ओके, सॉलिड कैसा है, इनर कोर सॉलिड है, ठीक है। अगर हम बात करें लिथोस्फेयर की, व्हाट इज लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट and top of the mantle. Yes, what is basically lithosphere consist of? लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ द क्रस्ट एंड द टॉप ऑफ द मैंटल, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर, ठीक है। And in short, lithosphere is not a continuous piece. Instead, is made up of several pieces like a puzzle. That these pieces are called tectonic plates. मुझे लगता है ये तुम लोगों ने न्यूज़ वगैरह में भी सुना होगा, ये वर्ड जो है वो काफ़ी बार यूज़ होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं क्या चिल्ड्रन? ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं बेसिकली जो लिथोस्फेयर है, जो तुम्हारी लिथोस्फेयर है, जो क्रस्ट है, जो टॉप ऑफ द मेंटल है, वो जो है वो एक इवननेस नहीं, एक जैसा नहीं है, सिंपल नहीं है, प्लेन नहीं है। इट इज बेसिकली देयर इनटू पीसेस, पीसेस में है, और यही पीसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। इन सिंपल वर्ड्स, जो ये बेसिकली लिथोस्फेयर के पीसेस हैं जिनसे एक लिथोस्फेयर बनती है, उसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। एंड द एजेस ऑफ द प्लेट्स आर कॉल्ड प्लेट बाउंड्रीज, और ये जो एजेस हैं इन प्लेट्स की, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लेट बाउंड्रीज। जो भी एजेस वगैरह हैं प्लेट की, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लेट बाउंड्रीज। तो ये सारी की सारी बात हो गई लेयर्स ऑफ अर्थ की, ठीक है। देयर इज अ सॉलिड क्रस्ट, देयर इज अ हॉट नियरली सॉलिड मैंटल, देयर इज अ लिक्विड कोर, देयर इज अ सॉलिड इनर कोर, देयर इज अ लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ द क्रस्ट एंड द टॉप ऑफ द मैंटल। लिथोस्फेयर इज नॉट अ कंटिन्यूस पीस, इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ पीसेस जिसे हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, और उसकी एजेस हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्रीज। क्लियर? ये है बेसिकली अबाउट द लेयर्स ऑफ द अर्थ। ओके, दिस इज अबाउट द लेयर्स ऑफ द अर्थ। एज वी मूव फॉरवर्ड टॉकिंग मोर अबाउट इट, नेक्स्ट वी हैव, तो भाई मैम ये बताइए, आप ये बताइए कि ये भूकंप आता क्यों है? What is the reason why this earthquake exactly happened? क्यों इतनी बुरी तरह से, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी ये बेसिकली क्रिएट करती है कि भाई पूरा का पूरा जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की लाइफ, लोगों का हो सकता है ज़िंदगी भर का जमा पूंजी से बनाया हुआ घर भी टूट जाए। Yes, तो एग्जैक्टली हाउ दिस earthquake happened? सो हमने बात करी टेक्टोनिक प्लेट्स की, जैसे लिथोस्फेयर तुम्हारी बिट्स एंड पीसेस में है, जिन्हें हमने नाम दे दिया है टेक्टोनिक प्लेट्स का। ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं, ये जो पीसेस हैं, ये हैं कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग हो रही है, और जब ये ड्रिफ्ट करते हैं स्लोली स्लोली ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं, स्लोली ऐसे बोलते हैं ना, खिसक रहे हैं, थोड़ी से अपनी जगह से हट रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। एज दे ड्रिफ्ट around on the slowly flowing mantle layer below, बेसिकली क्या करते हैं, ये बहुत आराम से स्लोली ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती हैं, स्विफ्टली मूव करती हैं बिलो दी मेंटल लेयर। ओके, पर कभी ऐसा होता है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स, द फॉल्ट हैपन्स व्हेन दे मूव, कुछ ऐसा फॉल्ट आ जाता है। भाई नेचुरल चीज़ है, कोई भी इशू आ सकता है, ऑफ कोर्स इट्स द होल यूनिवर्स इज मेड अप बाय द गॉड, ऊपर वाले ने बनाए हैं। बट जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स कभी कभी शिफ्ट होती हैं और इनमें कोई फॉल्ट आ जाता है, तो उस फॉल्ट की वजह से जब ये प्लेट सफिशिएंटली शिफ्ट बेसिकली नहीं हो पाती हैं, फॉल्टी हो जाता है, इनके जो एजेस हैं वो अनस्टिक हो जाते हैं, तो इट कॉजेज द अर्थक्वेक। तो यानी कि तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं, जो बिट्स एंड पीसेस में हैं, ये कंटिन्यूसली शिफ्ट होती हैं, और जब ये कंटिन्यूसली शिफ्ट हो रही होती हैं, तो ये बेसिकली क्या करती हैं, ये स्लोली शिफ्ट होती हैं। बट जब ये शिफ्टिंग कर रही हैं अपनी, जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट कर रही हैं, और अगर इनमें कोई फॉल्ट आ जाए,
कोई फॉल्ट इशू आ जाए या फॉल्ट आ जाए तो इनके जो एजेस हैं वो कैसे हो जाते हैं, अनस्टिक कर जाते हैं। अनस्टिक समझो, एक दूसरे से चिपक के चल रहे हैं, एकदम खुद से ऐसे सब एक साथ मूव कर रहे हैं। सडनली क्या होगा कि कुछ एक दूसरे से नहीं स्टिक करके रखे हैं, कोई आगे मूव कर गया, कोई पीछे मूव कर दिया। तो इस वजह से इस टेक्टोनिक के इस तरह की शिफ्टिंग प्रोसेस की वजह से, इस तरह की प्रोसेस की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। इसकी वजह से क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। सो दिस इज द रीजन बाय अर्थक्वेक हैपेंस। क्लियर? तो भाई क्विक थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है बट इम्पॉर्टेंट है। कल को कोई पूछेगा तुम लोगों से कि अर्थक्वेक कैसे आता है तो थोड़ा सा तो बता सकते हो, एटलीस्ट कुछ तो रिलेट ही कर सकते हो कि अच्छा मैम ने बताया था व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स, पे हमने बताया था कि कैसे ये अनस्टिक कर जाती हैं, कैसे ये टेक्टोनिक प्लेट्स बनती कैसे हैं, अर्थ के कितने कोर हैं, कितने लेयर्स हैं, ये सारी बात तुम लोग बता सकते हो। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द अर्थक्वेक, हाउ दिस अर्थक्वेक हैपेंस। क्लियर? यस, let's move forward. Next we have epicenter. तुम लोगों ने बेसिकली बात सुनी होगी, वर्ड भी सुना होगा, मैंने तो काफी सुना है, एपीसेंटर एपीसेंटर। सो ये एपीसेंटर है क्या? अगर तुम लोग इस पर्टिकुलर एसेट में भी देख सकते हो, इस पर्टिकुलर इसमें देख सकते हो, अगर ध्यान से देखो तो इन्होंने क्या किया है, पूरा अर्थ क्रस्ट, सेस्मिक वेव्स, ठीक है। एपीसेंटर वो सेंटर है जहां से ये अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, मतलब जहां पर जो प्लेट्स थी वो मूव करी और उन्होंने बेसिकली शिफ्टिंग करी और शिफ्टिंग फॉल्टी हो गई, तो वहां से ये इनिशिएट हुआ ये शेकिंग, वहां से ये बेसिकली सेस्मिक वेव जो होती हैं, वेव जो है वो दूर तक जाती हैं, वहां से जहां से बेसिकली ये इनिशिएट होगा पूरा अर्थक्वेक का प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं एपी सेंटर। उसको क्या बोलते हैं हम? एपी सेंटर। सो व्हाट इज एपी सेंटर? द एपी सेंटर इज द प्लेस वेयर एन अर्थक्वेक फर्स्ट अकर, सबसे पहले जहां पर बेसिकली अर्थक्वेक जो होता है वो बेसिकली कैसे बोलते हैं, अर्थक्वेक जैसे ही बेसिकली इनिशिएट होगा वहां पर सबसे पहले वेव्स जहां से निकलेगी, सबसे पहले शेकिंग जहां पर फील होगी, वहां पर जब होता है तो उसको बोलते हैं हम एपी सेंटर। क्लियर? उसको क्या बोलते हैं हम? एपी सेंटर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Yes, what is epicenter? What are tectonic plates? What are the layers of earth? Clear? Yes? Okay. Next, सेस्मोग्राफ्स। तो ये बेसिकली अगर ध्यान से देख पाते हो, व्हाट इज सेस्मोग्राफ्स? अगर हम सेस्मोग्राफ्स की बात करें बेसिकली, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन, ठीक है, हम बात कर रहे हैं सेस्मोग्राफ्स की। सो व्हाट आर सेस्मोग्राफ्स? अगर हम सेस्मोग्राफ को बात करें तो सेस्मोग्राफ्स डिटेक्ट करता है सेस्मिक वेव्स एज अ जिगजैग सीरीज। अगर तुम लोग ध्यान से देख पाओ, ये पर्टिकुलर मशीन जो है ये क्या है, इसे बोल रहे हैं सेस्मोग्राफ। ठीक है, ये क्या करता है, ये करता है डिटेक्ट करता है, क्या डिटेक्ट करता है? सेस्मिक वेव्स डिटेक्ट करता है, जो कि सीरीज ऑफ जिगजैग, सीरीज ऑफ जिगजैग। जस्ट बिकॉज तुम लोगों ने जैसे ईसीजी देखी है, ईसीजी मशीन देखिए हार्ट वाली, तुम लोग ने कभी कभी हॉस्पिटल में देखा होगा, तो हम वहां पर उस ईसीजी में देखते हैं ना, ऐसे 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 करके वेव्स बन रही होती हैं, हाँ या ना? ऐसे 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 मूवीज वगैरह में भी देख लिया होगा तुम लोगों ने। बस ठीक उसी तरह से ये सेस्मोग्राफ है। ये क्या करता है, किस तरह की वेव्स आई, कितनी हाई वेव्स, कितनी लो वेव्स, कितनी इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आया, वो जो है ये सेस्मोग्राफ जो है वो बेसिकली जज करता है। साइंटिस्ट जो हैं वो इसे यूज करके डिटरमाइन करते हैं द टाइम, location and intensity of the earthquake from the information recorded by a seismometer। समझ रहे हो कितनी अच्छी ये चीज बनाई हुई है साइंटिस्ट वगैरह ने, और इसी की मदद से, इसी की हेल्प से क्या करते हैं साइंटिस्ट, ये डिटरमाइन करते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला भूकंप किस टाइम पर आया था, किस लोकेशन पे आया था,
और कितनी इंटेंसिटी के साथ आया था, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर होती है इस सेस्मोमीटर की वजह से। यही जिगजैग वेव्स इस सेस्मोमीटर से निकलती हैं, इन्हीं के थ्रू जो है वो साइंटिस्ट मेजर करते हैं कि लोकेशन, बेसिकली टाइम एंड इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, और फिर ये हमें प्रोवाइड करते हैं कि भाई इस तरह से चीज़ें हुई हैं, इस तरह से ये अर्थक्वेक आया है, इस तरह से इतने मैग्नीट्यूड का आया है। भाई ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती। इन्हीं वेव्स के थ्रू बेसिकली मेजर करते हैं क्या? इंटेंसिटी। क्या मेजर करते हैं? इंटेंसिटी मेजर करते हैं कि कितना इंटेंस अर्थक्वेक था, कितना इंटेंस अर्थक्वेक था। ये मेजर करते हैं हम लोग सेस्मोग्राफ से। ठीक है, किससे मेजर करते हैं? सेस्मोग्राफ से। इस पूरे जो जिगजैग पैटर्न्स आ रहे हैं, इसी से बेसिकली देख भी रहे हो ये पर्टिकुलर वीडियो में, इसी तरह का होता है सेस्मोग्राफ, और इसी से टाइम, डेट, प्लेस, इंटेंसिटी, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो जज की जाती हैं। तो बेसिकली कोई पूछे कि अर्थक्वेक किस तरह से हम मेजर करते हैं, तो बिल्कुल एकदम स्मार्टली आंसर कर देना, यस, स्मार्टली आंसर कर देना कि हम उसे कर रहे हैं किसके थ्रू? सेस्मोग्राफ के थ्रू। क्लियर चिल्ड्रन? यस, मूविंग फॉरवर्ड। यस, चलो, डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक। क्या बेसिकली डूज हैं और क्या है डोंट्स, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो भाई ये जान लो कि व्हाट आर डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अगर मैं डूज की बात करूं, सबसे पहले ड्रॉप डाउन ऑन टू योर हैंड्स एंड नीज। यस, सो बेसिकली क्या करना है हमें? ड्रॉप डाउन, ये देख रहे हो एग्जैक्टली, ऐसे भागना नहीं है, ऐसे बिल्कुल सच से हाथ रख के ऐसे बैठ जाना है। ठीक है, कवर योर हेड एंड योर नेक, होल्ड ऑन टू योर शेल्टर। अपने शेल्टर पे क्या करो? होल्ड करके रखो। ऐसा नहीं इधर उधर भागे चले जा रहे हैं। फाइंड अ प्लेस जहां पे तुम लोग अपना हेड पे हाथ रखे एंड यू कैन जस्ट बो डाउन एंड यू कैन जस्ट सिट ओवर देयर। ठीक है, ये देख रहे हो ये पोजीशन, टेबल के नीचे ऐसे नहीं बैठना है, टेबल के नीचे ऐसे बैठना है। ठीक है, ओके, एटलीस्ट इट कैन सेव यू फ्रॉम सम एनी kind of a damage which can basically happen to you or to your life or to anything which is in the surroundings. ठीक है, तो क्या करना है? कवर करना है अपना हेड और नेक को कवर करना है। होल्ड ऑन टू योर शेल्टर जहां पर हो वहां पर होल्ड ऑन करो बेसिकली, और ड्रॉप डाउन ऑन टू योर नीज। एंड आई वुड ऑल्सो से दैट ट्राई टू मूव इन ओपन स्पेसेस। यस, ट्राई टू मूव इन टू दी ओपन स्पेसेस, जहाँ थोड़ा सा खुला मैदान हो, वहां पर जो है हम लोग थोड़ा भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि ओपन एरिया में रहेंगे तो भाई किसी तरह का ज्यादा डैमेज नहीं होगा अगर कोई बिल्डिंग वगैरह अगर फॉल ऑफ होती है। तो ये सारे के सारे डूज हैं जो हमें अर्थक्वेक के टाइम पर करने हैं। क्लियर? These are the do's during the earthquake. Drop down onto your hands and knees, cover your neck and head, hold on to your shelter. Clear? These are the do's during the earthquake. Okay, children, is it clear? Yes? Next, फिर और क्या डूज हैं बेसिकली ड्यूरिंग द अर्थक्वेक? अगर आप किसी व्हीकल में हैं, ठीक है, अगर यू आर इन अ व्हीकल ऑन द मार्जिन, कीप इट अवे फ्रॉम द ओवरहेड वायर्स। अगर आप किसी व्हीकल में बैठे हुए हैं, किसी बस में बैठे हुए हैं, सो बेसिकली ट्राई करें वो व्हीकल जो है थोड़ा सा वायर्स और ट्रीज के पास से हट जाए। ठीक है, इट इज बेसिकली अवे फ्रॉम द ओवरहेड वायर्स, इट इज अवे फ्रॉम द ओवरहेड ट्रीज, अंडर पासेस एंड यूटिलिटी पोल्स। देख रहे हो ध्यान से? जो भी व्हीकल है, अगर किसी व्हीकल में बैठे हो और बेसिकली XYZ पर्सन व्हीकल में बैठा है और अर्थक्वेक आ गया,
तो उस वजह से जो व्हीकल को है थोड़ा मूव करना शुरू करना चाहिए। अगर आसपास कोई पोल लगा हुआ है या फिर किसी अंडरपास के नीचे खड़े हुए हो, ठीक है, ओवरहेड वायर्स वगैरह हैं, तो वहां से क्या करना चाहिए, जल्दी से मूव करने की ट्राई करना चाहिए। ओवरहेड वायर्स, अंडरपासेस एंड यूटिलिटी पोल से क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। इवन दो अ व्हीकल मे शेक violently, you should stay there until the shaking ceases. माना कि जिस व्हीकल के अंदर बैठे हुए हो, देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी कि वो व्हीकल जो है वो शेक करने लगेगा। सिंपल सी बात है, वो व्हीकल क्या करेगा, शेक करने लगेगा। देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी द व्हीकल माइट स्टार्टेड शेकिंग until and unless this shaking stops, until and unless you see that the shaking hasn't stopped, you will stay inside that bus. Yes, you will stay inside that vehicle. You will not leave the vehicle and move on to some open space. नहीं, आप जहां हैं जैसे हैं बस उस व्हीकल को आसपास किसी पोल से, आसपास किसी अंडरपास के एरिया से जो है उसे रिमूव कर लीजिए और जो है उसको किसी सेफ जगह पे जाके खड़े हो जाइए और उसी के अंदर बैठे रहिए। तो ये कुछ चीजें डूज हैं जो तुम लोगों को हमेशा याद रखने हैं व्हेन इट कम्स टू अर्थक्वेक। यस, यू हैव टू रिमेंबर दीज डूज। क्लियर? Put your vehicle on the margin and keep it away from the overhead wires, underpasses and utility poles. Even though a vehicle may shake violently, you may stay there until the shaking ceases. So this is about the do's during earthquake. Clear? Yes? I hope this is clear to you. Yes or no? Yes or no? Is it clear? नेक्स्ट, फैक्ट्स। फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा। सो चिल्ड्रन, कुछ फैक्ट्स हैं जो तुम लोगों को थोड़ा ध्यान देने हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्थक्वेक। बिफोर एन अर्थक्वेक, ponds, canals, lakes and other water bodies may emit unpleasant smell and become slightly warmer due to gases released in the underground as the plates shift. तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चेंजेस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। हो सकता है हम उसे डेली बेसिस पे इग्नोर कर दें, पर उन्हें इग्नोर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो एक इंडिकेशन हो सकते हैं, कहीं ना कहीं एक इशारा हो सकते हैं। सिंपल ऊपर वाले का ही इशारा समझ लो, ठीक है, कि इशारा हो सकते हैं कि भाई आने वाला कुछ नेचुरल डिजास्टर होने वाला है। तो जैसे अगर तुम लोग अर्थक्वेक कभी होने वाला होता है तो जो भी पॉन्ड्स, जो भी ऐसी पानी वाली जगह है जैसे कैनाल्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वहां पर क्या है, थोड़ी सी बैड स्मेल आने लगेगी। पानी जो है वो हल्का गर्म होने लगेगा। नॉर्मल शाम को भी थोड़ा सा क्या होगा, हल्का सा वार्म होगा। वो किस वजह से होता है? क्योंकि तुम लोग को पता है कि थोड़े से डीप होते हैं रिवर, लेक्स वगैरह में डेप्थ तो होती है। तो इनकी डेप्थ की वजह से जब ये प्लेट्स शिफ्ट कर रही होती हैं तो कुछ गैसेस रिलीज करती हैं, और जब वो ये गैसेस रिलीज करती हैं वो जाके इन पानी में मिल जाती हैं, और इसी वजह से इन पानियों में से, इन आसपास के जो लेक्स एंड पॉन्ड्स, जो वाटर बॉडीज हैं, इनमें से जो है थोड़ी सी स्मेल आने लगती है, अजीब सा, बेसिकली अनप्लेजेंट स्मेल आने लगती है। और दूसरा क्या होने लगता है, ये वार्म पड़ने लगते हैं। गैस, समझ रहे हो ना, अंदर वैसे ही इतना वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तुम लोग को पता है अंदर क्या है, वॉल्केनो लावा जैसी लिक्विड बेसिकली है, तो ये गर्म ही होते हैं, ठंडे नहीं होते। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी हॉट, इट्स गोइंग टू बी वार्म। ठीक है, क्लियर? तो ये भी कहीं ना कहीं, भले ही ये इसका रीजन साइंटिफिक दे रखा है, बट मैं तो बोलूंगी भाई ठीक है, इट्स गोइंग टू बी अ गुड इंडिकेशन फ्रॉम द गॉड, इट्स गोइंग टू बी गुड इंडिकेशन फ्रॉम द higher source. Okay, the largest earthquake ever recorded on earth was the magnitude of 9.5 and occurred in southern Kyle on May 22, 1916. देख रहे हो, अब तक का आज तक का सबसे बड़ा अर्थक्वेक रिकॉर्ड हुआ विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 9.5। सोचो कितना डैमेज हुआ होगा, कुल लोग कितने लोगों की लाइफ दे हैव लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी, दे हैव लॉस्ट लॉट्स ऑफ थिंग, एंड दिस वाज द मोस्ट ड्रेडफुल largest earthquake ever recorded on earth was a magnitude 9.5 and it occurred in southern Kyle in 1960। काफी टाइम पहले की बात है, उसके बाद भी काफी earthquake आए हैं, ऐसा नहीं है उसके बाद नहीं आए, but this was the most dreaded one. In 132 AD, a Chinese astronomer Zhang Heng
created a seismometer, a device that detects the ground movements during an earthquake. तो भाई ये तुम लोग को पता है, एक सेस्मोग्राफ है, दूसरा क्या है, सेस्मोमीटर. देख रहे हो 132 AD में एक चाइनीज एस्ट्रोनॉमर ने, हैंग जेंग ने क्या किया, उन्होंने एक सेस्मोमीटर, उन्होंने क्या किया, एक सेस्मोमीटर बनाया, एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे ग्राउंड में जो मूवमेंट हो रही है उसके बारे में क्या करे, पता चले. जो ग्राउंड में जो बेसिकली मूवमेंट हो रही है उनके बारे में पता चलेगा. ये सारी की सारी चीजें हुई, ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं. क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर चिल्ड्रन. काफी सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने शेयर करी, किसके बारे में, अर्थक्वेक के बारे में. कुछ फ्लैग्स शेयर करें, कुछ हमने देखा कि क्या कितनी लेयर्स हैं अर्थ की, लिथोस्फेयर, ठीक है, देयर आर बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स, कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट करती हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं जिनसे पता चलता है कि अर्थक्वेक इज बेसिकली गोइंग टू हैपन. सो बेसिकली दिस फैक्ट्स ऑल्सो वी हैव गॉन थ्रू. तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, कुछ चीजें. ये पूरा का पूरा सेशन तुम लोगों को बस एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब मैं ऐसे, I understand the paper comes from your books, I understand you have to go through your books, but कभी कभी important होता है कि हम वो चीज़ें भी जानें जिनके बारे में बात नहीं होती है जनरल बेसिस पे, डेली बेसिस पे बात नहीं होती है. दिस इज important, this is a part of life. You should know about things, you should be aware about things. So that is why I have basically come up with such particular topics जिनके बारे में तुम्हें एक बेसिक जनरल नॉलेज, बेसिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वी हैव टेकन सच पर्टिकुलर टॉपिक्स. ओके, आई होप इट गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, यू गोइंग टू रिमेंबर दिस इन्फॉर्मेशन. मूविंग फॉरवर्ड चिल्ड्रन, वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन. अब मैं तुम लोगों को एम्बाइब के बारे में बताती हूँ. तो एम्बाइब चिल्ड्रन इट्स लाइक द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग. This is the place where you basically gain a lot of knowledge from the content, different way of understanding, और हर एक बच्चे की समझ के अकॉर्डिंग, हर एक बच्चे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग everything is being curated on this particular platform. So Embibe have lots of feature, and the features basically one is the lens, Embibe lens, जिसमें basically अगर तुम जाओगे ऐप स्टोर में Embibe lens टाइप करोगे और डाउनलोड करोगे, एक लेंस जैसा ही खुलेगा एक ऐप, उसमें अपना जो भी टेक्स्ट है उसे स्कैन करो, इट विल हाईलाइट ऑल द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स पे क्लिक करो, जैसे कीवर्ड्स पे क्लिक करोगे तुम लोग उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. फिर एम्बाइब में तुम्हारे खूब सारे इंटरैक्टिव कूबो लेसन्स भी हैं. क्या हैं? खूब सारे इंटरैक्टिव कूबो लेसन्स हैं जिसमें 3D 2D एसेट्स का यूज करके तुम्हारी लर्निंग जो है वो इनहांस की गई है. क्या की गई है? तुम्हारी लर्निंग इनहांस की गई है. देन यू हैव प्रैक्टिस टेस्ट, कि भाई जितना पढ़ रहे हो उतने की प्रैक्टिस तो करो, टेस्ट तो लो, समझ तो आए, कितना पढ़ा है, किसी काम तो आया. ठीक है, बेसिकली 400+ चैप्टर्स, एग्जाम, सब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट लेवल, सारी चीजें बेसिकली प्रेजेंट है. नेक्स्ट वी हैव अचीव जर्नी. अचीव जर्नी बहुत अच्छी चीज़ है. अच्छा, डायग्नोस्टिक्स टेस्ट अगर तुम लोग लोगे, छोटे छोटे टेस्ट पे बेस्ड है. ये बेसिकली जज करेगा कि तुम्हारी नॉलेज में कहाँ पर गैप्स हैं. क्या है? तुम्हारी नॉलेज में कहाँ पर गैप्स हैं, और उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे वर्क करेगा जो तुम लोग भूल चुके हो, जो पहले कभी पढ़े थे और अब यूटिलाइज कर रहे हैं पर तुम्हें याद नहीं. देन वी ऑल्सो हैव अ पेरेंट ऐप, जो पेरेंट में हेल्प करता है तुम्हारी परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए. देन वी हैव एम्बाइब लाइव क्लासेस, उसके बाद तुम लोगों को पता है रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होंगी. देन वी हैव डाउट resolution, priority customer support, and enhanced question bank. We also have that. And then we have Embibe Learn with lots of 70,000 videos plus, and along with the 22,000 plus books with all the solution and everything. So this is what Embibe gives you, children. You can basically also join us on the Embibe Telegram channel, and children you can download the Embibe app from the App Store. ठीक है, ये सारी की सारी चीजें देखो, ये है Embibe का Telegram channel. From 6 to 8 you can scan this barcode. Yes, this is the barcode. You can scan this barcode and you can basically join us on the Telegram channel, so you never miss an update regarding anything. Yes, so basically this is the Embibe Achieve Telegram channel. I hope children it was a useful session for you. ठीक है, क्विक सेशन है तुम्हारे लिए, थोड़ा इन्फॉर्मेटरी सेशन है. ऐसे बहुत सारे सेशंस और मिलते रहेंगे तुम लोगों को, जहाँ पे हम सिर्फ एक जनरल awareness is journal information तुम लोगों से share करेंगे. We're going to basically have lots of session like that. And before we start with the new session, with your new classes, new batch, with everything. Yes, until then I'm your educator Anam Khan. Please until then keep imbibing. Take care. Bye bye children.
Keep imbibing. We believe in you.